प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह सभी को। बैथल परिवार में आप सबको आज के रविवार की सेवा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से आप सभी लोग ठीक है। आइए हम अभी बाइबल से पढ़ेंगे। मैं हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 1 पढ़ दूंगी। आप लोग अपने बाइबल में देखिए। Hebrews chapter 6 verse 1. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death, and of faith in God. Amen. মই অসমীয়াত পঢ়ি দিম, আপোনালোকে বাইবেলত চাব। ইব্ৰী 6 অধ্যায় 1 পদ। এতেকে খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে আমি যি প্ৰাথমিক শিক্ষা পালোঁ তাক পাছ পেলাই আহক আমি পৰিপূৰ্ণতাৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ। পুনৰাই যেন আমি মৃত কৰ্মৰ পৰা মন পালটন আৰু ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ। आमेन। आइए हम अभी प्रभु को प्रार्थना करते हैं और ये सेवा को प्रभु के हाथों में रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र पिता, सुंदर दिन सुंदर समय देने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये कठिन समय में आप हमारे साथ हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा आपके नाम करते हैं पवित्र पिता, क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हैं। ये पूरे पृथ्वी और स्वर्ग के आप सृष्टिकर्ता है। आप इस योग्य परमेश्वर है महिमा के प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं पवित्र पिता। प्रभु, ये कठिन समय में आपने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है प्रभु। हमें कभी अकेले नहीं छोड़ा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र पिता। यू आर फेथफुल गॉड जीसस, वी थैंक यू फादर। प्रभु, ये सेवा को हम आपके हाथों में रखते हैं पवित्र पिता। पास्टर अर्पण के द्वारा आप हमारे साथ बात कीजिए प्रभु। आप हमें क्या कहना चाहते हैं, कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को आपके महिमा के लिए आप चलाना चाहते हैं, हमारे साथ बात कीजिए पवित्र पिता और आशीर्वाद कीजिए कि हम आपके रास्ते पर चल सके पवित्र पिता। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति को मैं आपसे मांगती हूँ पवित्र पिता, और आप ये प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये सारी सेवा को आपके हाथों में रखती हूँ पवित्र पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। आइए हम अभी स्तुति आराधना में जाएंगे भाई दोव के पास, और उसके बाद पास्टर अर्पण से हम प्रभु के वाक्य सुनेंगे। धन्यवाद। Hallelujah. Praise the Lord, everyone. सभी को जय मसीह। God is great. God is great. A few days back, as I was just pondering upon these two verses, Acts chapter 3 verse 6, and Proverbs chapter 18 verse 10, I was reminded of how great is our God, how mighty is our God, how mighty is His name, the name of Jesus. We see a lot of unusual things happening around us. People are losing hope, but we as believers, our hope is in Jesus Christ. Amen. He is mighty to save you, and He is mighty to save us. Amen. Come on, let's just shout His praise. Hallelujah. Mighty to save. Come on. Yes, Jesus, you are mighty. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ooh. Well, everyone needs compassion, a love that's never failing, that mercy for long me. But everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, of the hope of nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. An author of salvation.
light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. Come on, declare it. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. And author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. An author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, Lord. Yes, you are mighty to save. Yes, Lord, you are the hope of nations, the author of salvation. Yes, Lord, we praise you. We lift your mighty name, Jesus. Be lifted high, Jesus. Oh, Mahima ho, Prasansa ho, Aradhana. Come on, church, sing it out. Oh, सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे ही मैं जीऊंगा। महिमा महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे ही मैं जीऊंगा। तेरा नाम चाहे, तेरा नाम चाहे, तेरा नाम चाहे, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम चाहो, तेरा नाम चाहो, तेरा नाम चाहो, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरे लिए मैं जीऊंगा। तेरे लिए मैं जीऊंगा। Yes, Lord, we live for you, Jesus. Be lifted high. Mahima ho, prasansa ho, Jesus. We just want to praise your name for who you are. We bless your mighty name. Be lifted high, be glorified. It's all about you, Jesus. It's all about you. We'll live for you, Jesus. Thank you, Jesus, for your sweet name, for your powerful name, for your wonderful name, for your mighty name, Jesus. Be lifted high. Tera naam ucho. Thank you, Jesus, for this time. We bless your name. Thank you. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में फिर से जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का जो
परमेश्वर का वचन का जो शीर्षक है वो है हाउ कैन आई ग्रो। एक ईसाई होने के नाते, परमेश्वर में विश्वास करने वाले व्यक्ति होने के नाते मुझे कैसे आगे बढ़ना है, हाउ कैन आई ग्रो एज अ क्रिश्चियन। ओके, हम लोग प्राकृतिक वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो जब एक बच्चा पैदा होता है तब क्या होता है, समय के साथ वो बच्चा बढ़ता है। 1 महीना में थोड़ा बड़ा होता है, 2 महीना में और बड़ा होता है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उसके बाद वो चलना सीख लेता है, उसके बाद वो बोलना सीख लेता है। नेचुरल प्रोसेस में अगर हम लोग देखेंगे तो जब एक बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है, इवेंचुअली वो ग्रो होता है, वो बढ़ता है। अगर कोई बच्चा ना बढ़े, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो नेचुरल नहीं है। सोच लीजिए 20 साल का एक बच्चा जैसा था पहले, माँ का दूध पीता था, अभी भी माँ का दूध ही पी रहा है, इतना सा था अभी भी इतना सा ही है। 20 साल के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, 20 साल के बाद भी कोई ग्रोथ नहीं है, तो ये अस्वाभाविक है। ओके, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर मुझे ऐसे तरीक़ा से बनाया है कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग ग्रो होते हैं, हम लोग के अंदर में ग्रोथ होता है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, सब क्षेत्र में परमेश्वर ने आप पर हमें ग्रो होने के लिए बनाया है। उदाहरण, एक बच्चा क्या होता है, छोटा में बहुत ज़्यादा रोता है, पर जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसका इमोशंस में वो क्या होता है, ग्रोथ आता है, और इतना तक होता है कि जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है, वो अपना आंसू को, अपना दर्द को वो कंट्रोल करना सीखता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को परमेश्वर ने ऐसे तरीक़ा से बनाया है कि वी आर डिजाइन्ड टू ग्रो। ओके, जितना हम लोग बढ़ते हैं उतना ज़्यादा हम लोग के अंदर में जो क्वालिटीज़ है, हम लोग के जो चरित्र है, ये सब चीज़ भी क्या होता है, ग्रो होता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि गॉड हैज़ कॉल्ड अस टू ग्रो। परमेश्वर ने आप पर मुझे बढ़ने के लिए बुलाया है। ओके, उन्नति करने के लिए प्रभु ने आप पर मुझे बुलाया है। ओके, उसी तरीका से क्रिश्चियन लाइफ में, विश्वासी का जीवन में भी ग्रोथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्वासी के जीवन में भी आत्मिक रूप में बढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग नहीं बढ़ते हैं तब क्या है, एक बच्चा जैसा 20 साल में भी वो छोटा ही रहता है, तब क्या है, हम लोग सोचता है कि कुछ खराबी है या कुछ प्रॉब्लम है। वैसे हम लोग का ईसाई जीवन में भी अगर हम लोग परमेश्वर में नहीं बढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ समस्या है। और आज जो वचन मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ, वो वचन आप पर मुझे हेल्प करेगा कि कैसे हम परमेश्वर में हम लोग बढ़ सके। हाउ कैन आई ग्रो इन माई फेथ, हाउ कैन आई ग्रो इन क्रिश्चियन लाइफ। क्योंकि बहुत ज़्यादा विश्वासी लोग, परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग बहुत ज़्यादा साल परमेश्वर में विश्वास करने के बाद भी वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आज का वचन आप पर मुझे हेल्प करेगा कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के विश्वास में या क्रिश्चियन लाइफ में कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, 3 थिंग्स वी हैव टू नो। मैं बाइबल से, मैं 1 पीटर से मैंने आज का वचन को लिया है। 3 चीज आप और मुझे जानना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग इज, व्हाट मस्ट आई forsake टू ग्रो एज अ क्रिश्चियन। एक क्रिश्चियन होने के नाते और बढ़ने के लिए मुझे क्या चीज छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप और मुझे अगर बढ़ना है तब आप और हमें क्या करना है, कुछ चीज छोड़ना भी पड़ेगा। मान लीजिए एक छोटा बच्चा क्या करता है, गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। शायद आप भी जब छोटे थे आप गाड़ी के साथ खेलते थे, या पता नहीं वो डिप गोली खेलते थे, मुझे पता नहीं आप लोग क्या क्या खेलते थे। लड़की लोग को, बच्ची लोग को क्या करता है, बारबी खेलते हैं, वो लोग गुड़िया खेलते हैं। हम सब लोग जब छोटे थे हम लोग कुछ ना कुछ से हम लोग खेलते थे। पर जैसे हम लोग बड़े होते गए, हम लोग ने क्या किया, वो चीज़ को क्या कर दिया, खेलना छोड़ दिया। जैसे हम लोग का मैच्योरिटी आते गया, जैसे हम लोग का ज्ञान आते गया,
आज मैं एक छोटा सा गाड़ी में कभी भी नहीं खेलता हूँ, आज मैं बड़ा गाड़ी चलाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ग्रोथ हुआ है, मैं मैच्योरिटी में आया हूँ। उसी तरीका से क्रिश्चियन लाइफ में भी बढ़ने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ छोड़ना क्या है, जरूरी है। ओके, और यहाँ पे मैं 1 पीटर 2:1 में आज का फर्स्ट टेक्स्ट मैंने यहाँ से लिया है। पहला पत्रुस 2:1 में आप और मुझे सिखाया गया है क्या चीज़ हम लोग को छोड़ना है। ओके, therefore laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy and all evil speaking। ओके, आप और हम अगर परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोग को क्या छोड़ना पड़ेगा? हम लोग को दूसरा का निंदा करने वाले बातों को छोड़ना पड़ेगा, अपने ढोंगीपना को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, दूसरे के बारे में गलत जो बात हम लोग करते हैं, ये सब जो पाप हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग पहली कोरिन्थी 13:11 में देखते हैं तब पाउल ने यहाँ पे लिखा गया है, पाउल ने यहाँ पे कहा कि I became man and I put away my childish thing। मैं अभी क्या हो चुका हूँ? मैं एक मर्द बन चुका हूँ और जो भी मेरा छोटा बच्चे का विचार है, जो भी मेरा उसका चरित्र है, मैंने उसको क्या कर दिया है? मैंने उसको छोड़ दिया है। अगर आप कोरिन्थी का पुस्तक अच्छे से पढ़ेंगे तो उसने बोला है मैंने झगड़ा करना छोड़ दिया, मैंने डिवीजन करना, वाद विवाद करना मैंने छोड़ दिया, मैंने दूसरे के बारे में निंदा करना छोड़ दिया बोल के पौलुस लिखता है। और ये लेटर में पत्रुस क्या करता है? पौलुस के साथ सहमत होता है और पत्रुस भी बोलता है कि हाँ, अगर एक किसी को परमेश्वर में बढ़ना है, किसी को क्रिश्चियन लाइफ में ग्रो होना है तो क्या करना है? हम लोग को दूसरे के बारे में गलत सोचना, दूसरे के प्रति क्षमा न करना, दूसरे के प्रति गलत भाव रखना, हम लोग को रिवेंज लेना, दोष देना, गलत मुंह से बात निकलना, दूसरे के बारे में गलत बात करना, ढोंगीपना दिखाना, ये सब को क्या करना है? छोड़ना बहुत जरूरी है। प्रिय हो, जब आप और हम प्रभु में बढ़ते हैं, जितना हम लोग का मैच्योरिटी प्रभु में बढ़ता है, उतना ज़्यादा प्रभु आप और मुझे आनंद देता है, उतना ज़्यादा हम लोग बात को समझ सकते हैं, उतना ज़्यादा हम लोग संचार को अच्छी तरीक़े से समझ सकते हैं। पर आज भी अगर छोटी बच्चे के जैसा, छोटा बच्चा के जैसा अगर आप यही चीज़ों के साथ खेल रहे हैं, यही दूसरा के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा का निंदा कर रहे हैं, क्षमा नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप परमेश्वर में कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। आप परमेश्वर का बात को कभी भी नहीं समझेंगे, परमेश्वर का बाइबल का प्रकाश को आप नहीं समझेंगे। अगर आपको मैच्योरिटी में जाना है तो आपको ये सब चीज़ को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, फर्स्ट थिंग रिमेंबर क्या चीज़ को आपको छोड़ना है। सेकेंड थिंग हम लोग को जानना जरूरी है, वो ये है कि ऑन व्हाट मस्ट आई फीड टू ग्रो एज क्रिश्चियन। एक ईसाई होने के नाते और ईसाई होके आगे विश्वास में बढ़ने के नाते मुझे क्या खाना जरूरी है? ठीक है, एक तो छोड़ दिया, अभी क्या खाना जरूरी है? उसका कंटिन्यूएशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 पीटर 2:2 में यहाँ पे लिखा गया है, एज न्यू बॉर्न बेबीज डिजायर द प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड दैट यू मे ग्रो देयर बाय। हम लोग को सब क्या है को बढ़ने के लिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है। एक छोटा बच्चा को बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दूध देते हैं। जब वो 6-7 महीना का होता है हम लोग उसको सेरेलैक्स देते हैं। जब वो उसका और ज़्यादा एपेटाइट उसका बढ़ता है तब हम लोग उसको क्या करते हैं? चावल देते हैं। ऐसे ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं? उसको खिलाता है और वो क्या करता है? इवेंचुअली वो बढ़ता रहता है। आप और मुझे विश्वास में बढ़ने के लिए क्या खाना जरूरी है? बाइबल में लिखा गया है, एक नया बच्चे के जैसा क्या करो? प्योर दूध जो परमेश्वर का वचन है उसको क्या करो? उसको तुम खाओ, उसको पियो बोल के वचन में लिखा गया है। मैं आज आपको क्वेश्चन एक पूछना चाहूँगा, व्हाट आर यू फीडिंग योर माइंड विथ? अपने माइंड को आप क्या खिला रहे हैं? अपने हृदय को आप क्या खिला रहे हैं? अपने आत्मा को आप क्या खिला रहे हैं? यहाँ पे लिखा गया है कि अपने आप को क्या खिलाओ? परमेश्वर का वचन खिलाओ, प्योर वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। आपको खुद पढ़ना बहुत जरूरी है।
डिजायर द प्योर वर्ड ऑफ गॉड। क्या आज और आप और हम संसार के बारे में खाली हम लोग संसार के बातों को खाली हम लोग खिला रहे हैं ना? क्या हम लोग का जीवन में संसार में बहुत रंगी चंगी है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ संसार में क्या करता है, आपको आकर्षित करने के लिए बहुत कलरफुल चीज आपको दिखाता है। वो दिखाता है कि बिना शादी किए हुए भी साथ में बैठना एक अच्छा चीज है बोल के आपको टीवी यूट्यूब में देखने को मिलता है। आपको देखने को मिलता है दारू पीना, स्मोक करने कितना कूल लगता है, ये सब चीज दिखाता है। दूसरा को बदला लेने में कितना मजा आता है, ये सब चीज वहाँ पे दिखाते हैं। अगर आप ये सब चीज ले रहे हैं, गंदे विचार, गंदे चित्र को ये सब अपने जीवन में ले रहे हैं, तो आप कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ सकते। पर अगर आपको प्रभु में बढ़ना है, इफ यू वांट टू ग्रो इन गॉड, इन क्राइस्ट, आपको क्या करना है, परमेश्वर का वचन को खाना बहुत जरूरी है। प्योर मिल्क, द ओनली थिंग आप क्या कर सकते हैं इज टू डिजायर। जब एक बच्चा को भूख लगता है, वो क्या करता है, वो इतना रोता है, बोलता है, वो बोल भी नहीं सकता है, वो रो रो के क्या करता है, दूध के लिए वो मांग करता है। जब आप उसको दूध दे दो तब क्या होता है, वो शांत होता है। वैसे ही आप और मैं परमेश्वर का वचन के लिए भूखा होना है। आमीन। और जितना हम लोग भूखे होते हैं उतना ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन में बढ़ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट इज हु मस्ट आई फॉलो टू ग्रो एज अ क्रिश्चियन और टू बी मैच्योर। मुझे किसको फॉलो करना है, किसके पीछे चलना महत्वपूर्ण है एक क्रिश्चियन होके आगे बढ़ने के लिए, ओके, या ग्रो होने के लिए। देखिए एक छोटा बच्चा का, सब छोटा बच्चा का एक सुपर हीरो होता है। जब मैं छोटा था हम लोग शक्तिमान देखते थे, हम लोग को शक्तिमान बहुत अच्छा लगता था, ओ मेरा हीरो है ये। आजकल का बच्चा को सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन ये लोग देखता है और बोलता है ओ ये मेरा सुपर हीरो है, मुझे भी इन लोग जैसा बनना है। किसी के लिए आपका पास्टर शायद हीरो हो सकता है, किसी के लिए शायद आपको जिसने परमेश्वर में लाया है वो आपको हीरो हो सकता है। पर 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 में देखिए, यहाँ पे हाउ कैन यू ग्रो, यहाँ पे लिखा गया है फॉर टू दिस यू वर कॉल्ड, आपको इसीलिए बुलाया गया है, बिकॉज क्राइस्ट ऑल्सो सफर्ड फॉर अस, प्रभु यीशु ख्रिस्ट आप पर मेरे लिए ताराना प्रभु को दिया गया, लिविंग अस एन एग्जाम्पल that you should follow his steps। प्रभु ने आप पर मुझे ऐसे जीवन, उदाहरण का जीवन जी के दिखाया ताकि आप और हम भी प्रभु का क्या कर सके, परमेश्वर का दिखाया वाला रास्ता में हम लोग चल सके, that we may follow his steps। आप और हमें अगर बुलाया गया है प्रिय, तो आप और हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के स्वभाव को रूप धारण करने के लिए बुलाया गया है। प्रभु यीशु कैसे जीते थे वैसे आप और मुझे जीने के लिए बुलाया है। जीसस क्राइस्ट इज आवर परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आप प्रत्येक दिन प्रभु में नजर रख के, परमेश्वर को देख के, मैं भी प्रभु का जैसा होना चाहता हूं बोल के वैसे तरीके से अगर आप जीवन जीते हैं, तब मैं आपको बोलना चाहूंगा आप मसीह में, विश्वास में आप बढ़ सकते हैं। यू कैन ग्रो। आमीन। और अंत में मैं आपको यही मैं क्वेश्चन पूछ के मैं आज का वचन मैं खत्म करना चाहूंगा, आर यू ग्रोइंग? 10 साल पहले जहां पे थे आज भी क्या आप वहीं पे हैं, या आप ग्रो हो रहे हैं? मैंने जैसे पहले में बताया इंट्रोडक्शन में, मैंने कहा कि गॉड हैज कॉल्ड अस टू ग्रो। गॉड डिजायर फॉर अस इज दैट वी शुड ग्रो। परमेश्वर का इच्छा आप और मेरे लिए ये है कि हम लोग परमेश्वर में बढ़े। बट इफ वी आर नॉट ग्रोइंग, लेट अस स्टार्ट ग्रोइंग माय फ्रेंड्स। अगर आप और हम नहीं बढ़ रहे तो आइए हम लोग साथ में बढ़ते हैं। 3 चीज आप और मुझे जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 चीज, आप और मुझे बढ़ने के लिए कुछ चीज को हम लोग को छोड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज, हम लोग को परमेश्वर का वचन को खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा चीज, हम लोग को परमेश्वर के पीछे में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज के ये सुंदर दिन आपने हमें दिया, ये सुंदर जीवन आपने हमें दिया। प्रभु ये कोरोना के महामारी के बीच में भी प्रभु आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। आप आज भी जीवित है प्रभु, आज भी शक्तिशाली है प्रभु। और आज जो वचन आपने हमें बात किया, एम आई ग्रोइंग,
बहुत बार हम लोग बैप्टिज्म तो लेते हैं, प्रभु को विश्वास करते भी हम बोलते हैं प्रभु, पर हम लोग का जीवन में कुछ भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि हम वही पुराने चीज के साथ हम फंसे हुए हैं। लॉर्ड, पर आज आपने हमें बात किया प्रभु कि आपका इच्छा हमारे लिए ये है कि हम आप में बढ़ सके। प्रभु, आज के बाद हम आप में बढ़ना चाहते हैं। आज के बाद संसार का चीज को हम छोड़ते हैं प्रभु, आपकी वचन में हम लगे रहते हैं और आप जैसा हम होना चाहते हैं पिता। हम पूरा हफ्ता भर आपके अनुग्रह आशीष हमारे जीवन में हो पिता, और जब तक हम लोग फिर से नेक्स्ट वीक को नहीं मिलते प्रभु, आपके आशीष अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। सब विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमेन आमेन। सभी को जय मसीह।